Friends, here is the basic video for exercise 5.1, 5.2 and 5.3. Here only for 5.1, the general form of an AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D up to infinity. Friends, the general form of an AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D up to infinity. A is first term, and D is common difference. Friends, जब भी आपको AP फाइंड करनी है तो आपको ए फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d. ए यानी फर्स्ट टर्म, ए प्लस 2d यानी सेकंड टर्म, ए प्लस d यानी सेकंड टर्म, ए प्लस 2d यानी थर्ड टर्म, ए प्लस 3d यानी फोर्थ टर्म अप टू इंफिनिटी. यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ AP when you have a value of A and D. Okay, now here the second one, finite AP. An AP consisting only a finite number of terms is called a finite AP. यानी सपोज मैं लिखता हूँ 3, 6, 9 up to 999. So this AP is called a finite AP because its last term is given here. This is the finite AP. यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है. सपोज मैं लिखता हूँ 1, 3, 5 up to 99. तो हम इसमें बोल सकेंगे कि इसमें कितने टर्म्स है. How many terms are contained in this AP? 50. So it is a finite AP. But an AP in which the number of terms is unlimited is called the infinite AP. Like friends, suppose हमको दिया है 1, 3, 5, 7 up to infinity. यानी ऑड नंबर का पूरा आपको लिस्ट बनाना है. This is infinite AP. Suppose 5, 10, 15 up to infinity. We cannot say how many terms are contained in both these AP. So these are infinite AP. Okay? And third one, the arithmetic mean between two given number A and B. The arithmetic mean between two numbers is the number which when placed between the two given number, the three numbers form an AP. Thus, M is the arithmetic mean between A and B. Then the AP is A and B. Here, how can we find its mean ratio? Friends, A, M and B. यानी D is equal हम क्या लिखेंगे? Second term minus first term यानी A2 minus A1, M minus A. D is equal B minus M, A3 minus A2. D फाइंड करने का फॉर्मूला फ्रेंड्स B minus M. Both the common difference are same, so we write here M minus A is equal B minus M. So M, B as it is, this M we take that side it became plus, this M we take this side it became plus. So 2M is equal B plus A. So M is equal B plus A यानी A plus B divided by 2. This 2 we take in denominator. Friends, the arithmetic mean between two given number AD is M is equal A plus B by 2. This kind of question will be asked in a board exam as in a 1 marks. The arithmetic mean between two given number A and B. अगर A और B का बीच का नंबर M है तो M is equal A plus B by 2 होगा. सपोज देखो 1, 3, 5 लेते हैं तो सपोज ये 3 है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करो, उसको 2 से डिवाइड करो तो देखो फ्रेंड्स 6 by 2. We got here 3 is equal 3. यानी m का वैल्यू
हमको ये दोनों का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वैसे मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 5.2 एंड 5.3, बेसिक फॉर 5.2 एंड 5.3। दूसरी बात ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी एग्जांपल लो, सपोज आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हो 7 9 11 कोई भी लो, तो 9 इज इक्वल, देखो 9 का वैल्यू ये बीच वाले का वैल्यू होगा, ये दोनों का एडिशन करो 7 + 11/2 18/2 इट विल बी 9। एनी काइंड ऑफ एपी, सपोज आप लेते हो 5 5 10 15 5 10 15 10 इज इक्वल, ये दोनों का सम करो, उसको 2 से डिवाइड करो 15 20/2 यानी 10 यानी 10 इज इक्वल 10। तो इसको बोलते हैं द arithmetic mean between two given number. Now for 5.2 and 5.3, for 5.2 and 5.3, 5.2 के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रखना है सम फॉर्मूला, सॉरी टर्म फॉर्मूला, an is equal a plus n minus 1 into d. a is the first term, a is first term, n का वैल्यू अगर दिया है तो d, n का वैल्यू दिया है तो बराबर है, नहीं दिया है तो वो हमको अगर a15 फाइंड करना है तो n की जगह पे 15 लिखना है। nth टर्म d इज कॉमन डिफरेंस। अभी आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर टर्म दिया है या टर्म फाइंड करना है, टर्म फॉर्मूला आपको यूज करना है। इफ सपोज आपको बोला है कि a15 फाइंड करो तो आपको टर्म फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको कोई ऐसा देता है a20 इज इक्वल 300 तो भी आपको an इज इक्वल 300 तो भी आपको टर्म फॉर्मूला यूज करना है। टर्म दिया है, टर्म फाइंड करना है, टर्म फॉर्मूला, nth टर्म इज 300, टर्म फॉर्मूला यूज करो, 100% आंसर आएगा। ओके, एक्सरसाइज में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। दूसरा, इसमें ध्यान रखो, टर्म फाइंड करना है, 15 टर्म फाइंड करना है, 17 टर्म फाइंड करना है, 18 टर्म फाइंड करना है, कोई भी टर्म फाइंड करना है, टर्म फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, ए फॉर्मूला ही यूज करना है। अगर nth term is given 300, at that time also you have to use term formula. Now for 5.3, Sn is equal n/2 2a plus n minus 1 into d। यानी अगर आपको ऐसा फाइंड करना है S15 तो आपको सम फॉर्मूला फाइंड करना है, S20 सम फॉर्मूला फाइंड करो। लेकिन अगर आपको ऐसा देता है Sn is equal to 100, at that time also you have to use sum formula। sum फाइंड करना है कि sum दिया है, sum फॉर्मूला यूज करना है। sum फाइंड करना है, 15 टर्म sum फाइंड करो, sum फॉर्मूला यूज करो, 20 टर्म का sum फाइंड करो, sum फॉर्मूला यूज करो। nth टर्म sum is given 200, sum फॉर्मूला यूज करो। अगर ऐसा दिया है S5 is equal 300 तो अगर 5 के n की जगह पे 5 लिखो, 5 टर्म का सम दिया है 300, सम फॉर्मूला यूज करो। मैं एक एग्जांपल इसका दिखाता हूं। सपोज सॉरी इसमें दूसरा भी फॉर्मूला है, वो भी हमको याद रखना है। Sn is equal n/2 a plus n। Sn is equal n/2 a plus n। Sn is equal n/2 2a plus n minus 1 into d। Sn is equal n/2 2a plus n minus 1 into d। This is some formula, this is some formula, but this formula we use when the finite it is given, and also you know the value of first term and last term at that time you have to use this formula। दूसरा फ्रेंड्स, मैं इसका आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज आपको दिया है 2 4 6 up to और बोला है कि a10 फाइंड करो। तो फ्रेंड्स देखो, a is equal to
d is equal a2 minus a1, for minus 2 it will be 2. Now an is equal a plus n minus 1 into d. a10 is equal a की जगह पे 2, देखो मैंने n की जगह पे 10 लिखा, here I substitute 10 in place of n, so n की जगह पे 10 लिखो, 10 minus 1 into d की जगह पे 10 minus 1 9, 9 to the 18, 2 plus 18, so a10 is equal 20. तो इसका tan थीटा हमको 20 मिलेगा। और अगर इसमें उल्टा दिया है फ्रेंड्स, सपोज ऐसा दिया है 2 4 6 up to एंड ऐसा दिया है an is equal 20, then find an. ध्यान रखो फ्रेंड्स, a और d को हमने फाइंड किया, an is equal a plus n minus 1 into d, पूरे n की जगह पे 20 लिखना है, ऐसा नहीं कि a 20 लिखना है, पूरे n की जगह पे 20 लिखो, a की जगह पे 2, n नहीं जानते, minus 1 d की जगह पे 2, 22 2 into n to n, 2 into minus 1 minus 2 minus 2 plus 2 cut, 20 by 2, sorry 20 is equal to n, so 20 by 2 is equal n, so 10 is equal n. हमको n का वैल्यू कितना मिला 10, देखो हमने n की जगह पे 10 रखा था। अगर टर्म फाइंड करना है, nth टर्म दिया है, यूज टर्म फॉर्मूला। इसमें फ्रेंड्स एक दूसरी बात मेरे को आपको बतानी है कि इसमें दो वे है, अगर सम फाइंड करना है सम फॉर्मूला, सम दिया है सम फॉर्मूला, लेकिन अगर आप n नहीं जानते, देखो इसमें आपको याद रखना है, here you have to remember, here you have to remember, अगर सम दिया है, इसके लिए मैं समझा रहा हूं आपको, एसएन फॉर्मूला कब यूज करना है, if to find the sum use SN formula, to find the sum use SN formula। लेकिन इसमें दो बात है, अगर सम फाइंड करना है तो आपको SN फॉर्मूला यूज करना है। if you know n, use direct SN formula, and if you don't know n, first find n with using an formula। ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट है उसमें सम फाइंड करना है, तो फाइंड सम यूज एसएन फॉर्मूला, लेकिन इसमें दो वे है, इफ यू नो n यूज डायरेक्ट एसएन फॉर्मूला, एंड इफ यू डोंट नो एसएन फाइंड n विद यूजिंग an फॉर्मूला। n के ऊपर से an फॉर्मूला यूज करके तो आपको सबसे पहले n मिलेगा, देन यूज एसएन फॉर्मूला, देन यूज SN फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात, इसका दूसरा जो वे है, अगर सम फाइंड करना है तो इसमें दो वे है, लेकिन अगर सम दिया है, इफ सम इज गिवन, यूज SN फॉर्मूला डायरेक्टली। फ्रेंड्स दूसरी में बात आपको बता रहा हूं, अगर सम फाइंड करना है तो अगर आप n जानते हो तो डायरेक्ट SN फॉर्मूला यूज करो, n नहीं जानते हैं तो n के ऊपर से पहले n फाइंड करो, देन आफ्टर यूज SN फॉर्मूला। इफ सम इज गिवन, यूज SN फॉर्मूला डायरेक्टली, इफ सम इज गिवन, यूज SN फॉर्मूला डायरेक्टली। फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताया, अगर टर्म दिया है या टर्म फाइंड करना है, टर्म फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट एग्जांपल दिया है। दूसरी बात, कई बार दोनों साथ में आएंगे, SN वाला और AN वाला,
एन formula use करो, then after you have to do the method of elimination and you can solve any kind of sum in exercise 5.2 and 5.3. दूसरी बात फ्रेंड्स, कोई भी सम का अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी हमको यही वे पे जाना है. टर्म दिया है, टर्म दिया है, टर्म फॉर्मूला, टर्म फाइंड करना है, टर्म फॉर्मूला, सम दिया है, सम फॉर्मूला, सम फाइंड करना है. If you know n, use direct SN formula, but if you don't know n, using first n formula, then after SN formula. Okay friends, enjoy this basic video. Thank you very much.